Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today, I will discuss the chapter 4 atoms, molecules, and radicals. I will just mark the important portion from this chapter and you will just you will follow the most important portion for your N1 exam. So, let's start. First important portion is here the definition of atom. An atom is the smallest part of an element and takes part in chemical reaction. So actually question will be the smallest part of any substance taking part in chemical reaction. So answer will be atom, not a molecule. Next, valency का definition. The combining capacity of an element with other elements is known as its valency. मतलब एक एलिमेंट जब दूसरा एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है जिस रेशियो में जुड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंसी मतलब जिस नंबर के साथ जुड़ेगा दैट इज वैलेंसी नेक्स्ट एलिमेंट्स विथ वैलेंसीज 1 2 3 आर सेड टू बी मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 है उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट जिसका 2 डाइवैलेंट एज वेल एज जिसका 3 उसको हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट सो यहाँ से याद रखना है मतलब जिस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ सिंगल वैलेंसी के साथ जुड़ा है उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट 2 वैलेंसी के साथ जुड़ेगा तो डाइवैलेंट 3 वैलेंसी के साथ जुड़ेगा तो उसको ट्राइवैलेंट बोलेंगे सो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो यू विल लर्न द लिस्ट ओनली नेक्स्ट मॉलिक्यूल A molecule is the smallest part of an element or compound that can exist independently. What is the simple difference between atom and molecules? Once again, atom can not exist independently. Same way, molecule is the smallest part of an element or compound that can exist independently. Next, atomicity. The number of atoms contained in a molecule of an element or compound is called its atomicity. मतलब एक ठो मॉलिक्यूल के अंदर जितना नंबर एटम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे एटोमिसिटी सो द नंबर ऑफ एटम्स contained in a molecule of an element or compound is now called atomicity. Next यहाँ पे लिखा हुआ है देखो Formulae of elements. A molecule of a noble gas contains only one atom of element. Hence, the molecules of these elements are represented as helium, neon, argon. These gases are said to be monoatomic. So, एक बात में क्या होगा Normally, noble gases are monoatomic because they contains only single atom. Same way, which molecule contains two atoms? They are diatomic like hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine, etc. Same way, which molecule contains three atoms? They are triatomic. So example is only ozone, O3. ये याद रखना है उसके साथ ये बात ए मॉलिक्यूल हैविंग एन एटोमिसिटी ग्रेटर देन 2 मतलब जिस मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी नॉर्मली इज ग्रेटर देन 2 उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सो एग्जांपल O3 I mean ozone, P4 phosphorus, S8 sulfur are polyatomic molecules. उसके बाद binary compound मतलब the formula of a compound formed by two elements मतलब कम से कम दो एलिमेंट्स जुड़ के ही एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड बिकॉज बाई मीन्स टू तो जब दो मॉलिक्यूल सॉरी दो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड्स नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी का जो लिस्ट दिया हुआ है ये बहुत अच्छे से पढ़ना बिकॉज कॉपर shows variable valency. It may be 1 or 2, iron 2 or 3, tin 2 or 4, lead 2 or 4 once again. So ये लिस्ट अच्छे से पढ़ना नेक्स्ट रेडिकल में जाओ व्हाट इज रेडिकल radicals are a kind of a entity that can be an atoms with a charge on it or a group of atoms
So basically radical act as the atom or group of atoms but have a charge, behaving a single atom with a charge on a group. So it may be a single atom or group of atoms but possess charge. It may be positive charge or negative charge. तब उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल्स. तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम क्वेश्चन देंगे. Radicals have a valency 2 and take part in chemical reaction as a single unit. So normally radicals जो है act as a valency and take part in, मतलब radicals का valency भी है और ये केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेता है. नेक्स्ट, यहाँ पे जो ऑलरेडी ये रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स का चार्ट दिया हुआ है, तुम लोगों को सिर्फ ये पढ़ के याद रखना है. सपोज हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव रेडिकल्स हो करेगा, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव एंड एमोनियम पॉजिटिव. सेम वे फ्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयरन आयोडाइड नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, नाइट्रेट नेगेटिव एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑल्सो नेगेटिव. ये सब पढ़ के याद रखना है. हम एग्जाम्पल के हिसाब से क्वेश्चन देंगे. नेक्स्ट, यहाँ पे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली. ये जो डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल, बहुत अच्छे से याद करना. यहाँ से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आने का चांस है. ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना. उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे चले जाओ. द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, मतलब कॉलम्स को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स, एंड 7 रोज उसको बोलेंगे पीरियड्स. सो देखो कैसे बोलेंगे कॉलम्स को, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 18. तो ऐसे ही जितना सारा कॉलम होगा, कॉलम को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स एंड रोज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीरियड्स. बहुत अच्छे से ये दो अच्छे से पढ़ना. तो इसके अंदर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली चल जाओ यहाँ पे जो द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ऐसे ऑर्डर में लिखा हुआ है एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम उसका एटोमिसिटी ऐसे एटॉमिक नंबर पकड़ के हम दे सकते हैं. So already I have discussed the important portion of this chapter. You will just follow which actually I have discussed. So student, I hope all of you understood. So for today, up to this portion.